میری جان، مال اور عزت و آبرو کی ذمہ داری ریاست کی ہے. ریاست ذمہ دار ہے. میں ریاست کو اس اجتماع کی وساطت سے اور آپ کی تائید کے ساتھ واضح پیغام دینا چاہتا ہوں. مجھے جو بھی قتل کرے میں اس کا بدلہ نہیں لوں گا. میں اسٹیٹ کو اپنے قتل کا ذمہ دار سمجھوں گا. میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہنا چاہتا ہوں. میں پاکستان کی بیوروکریسی کو بھی کہنا چاہتا ہوں. میں پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں. میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جمعیت کو سیاست مت سکھاؤ، جمعیت سے سیاست سیکھو. پاکستان خود ایک قومی یکجہتی سے محروم ہے. ہم پاکستان میں شدت کی سیاست نہیں کر رہے. ہم پاکستان میں اصولوں کی اور محبت کی سیاست کرتے ہیں. میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہنا چاہتا ہوں. میں پاکستان کی بیوروکریسی کو بھی کہنا چاہتا ہوں. میں پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں. میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جمعیت کو سیاست مت سکھاؤ، جمعیت سے سیاست سیکھو. پاکستان خود ایک قومی یکجہتی سے محروم ہے. ہم پاکستان میں شدت کی سیاست نہیں کر رہے. ہم پاکستان میں اصولوں کی اور محبت کی سیاست کرتے ہیں. پاکستان ایک آئین رکھتا ہے، ایک قانون رکھتا ہے. کتنی مرتبہ ہم نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اس آئین پر حلف اٹھایا. ہم اس کے وفادار ہیں. لیکن جو لوگ ملک کے محافظ ہیں، جو ہماری سرحدات کے محافظ ہیں، جو ہماری ملکی سیاست کے محافظ ہیں، جو ہماری ملک کی معیشت کے محافظ ہیں، اگر وہی آئین کو سبوتاژ کرتے ہیں، اگر وہی قانون کو موم کی ناک بنا کر جدھر چاہیں جیسے چاہیں موڑ دیں، تو پھر ملک کو تباہی کے کنارے پر پہنچانا اس کے ذمہ دار آپ ہیں. میں دفاعی اداروں کا احترام کرتا ہوں. میں ملک کا نظم و نسق چلانے والے اداروں کا احترام کرتا ہوں. میں ملک میں اصولی سیاست کا احترام کرتا ہوں. لیکن اپنے حدود سے تجاوز کرو گے تو پھر سامنے بھی ہم کھڑے ہوں گے، مقابلہ بھی ہم کریں گے. اور انشاءاللہ تم مجرموں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہو، اس لیے کوئی مجرم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا. جمعیت علماء اسلام ایک پاک، صاف، شفاف اور عقیدے پر پختہ اور پرعزم جماعت، اگر اس کو تم نے مد مقابل میں لانے کی کوشش کی تو اپنی ہلاکت کا اعلان کرو گے اور کوئی راستہ تمہارے پاس نہیں. میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام ایک مؤثر قوت ہے. اگر آج پاکستان بچا ہوا ہے، اگر آج پاکستان باقی ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس کے فضل و کرم کو گواہ بناتے ہوئے واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کی برکت سے پاکستان باقی ہے. ہم خون کی قربانیاں دے رہے ہیں. گزشتہ 2-3 دہائیوں میں ہمارے کتنے کارکن، ہمارے کتنے عہدیدار، جید علماء کرام نشانہ بنے کس گناہ پر؟ کون سا گناہ کیا تھا انہوں نے؟ اگر کسی دوسری جماعت کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ہم بھی وہاں بھی ظلم کی خلاف آواز اٹھاتے ہیں. لیکن جمعیت علماء کا گناہ بتائیے، ان کے علماء کو کیوں شہید کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جو ہمیں قتل کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جس ملک کو ہم توڑنا چاہتے ہیں جمعیت علماء توڑنے نہیں دے رہے. ہم تو پگڈنڈی پہ سفر کر رہے ہیں. ایک طرف دباؤ آتا ہے، کبھی دوسری طرف سے دباؤ آتا ہے. ہم الیکشن لڑتے ہیں، ہم پاکستان کے جمہوری نظام کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ دھاندلیاں کر کے ہمیں پارلیمنٹ سے باہر رکھتی ہے. ایک طرف کچھ جاہل قوتیں ہم پر کفر کے فتوے لگاتی ہے، اور ایک طرف پاکستان کے وفادار ہمیں پارلیمنٹ سے باہر رکھنے کے لیے انتخابات میں دھاندلیاں کرتے ہیں. تو ہم کدھر جائیں؟ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں. اس پگڈنڈی پر ہم سفر کر رہے ہیں. ایک طرف بھی ہم پر گولیاں برس رہی ہیں، اور باجوڑ سے لے کر کراچی تک ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں. ایک باجوڑ میں ہم نے 80 جنازے ایک ہی اجتماع سے اٹھائے ہیں. وزیرستان کے تمام اضلاع کے امراء دہشت گردوں کی گولی کا نشانہ بنے ہیں. محمد کے علاقے میں جائیں،
कुरुम के इलाके में जाएं, वजीरिस्तान के इलाके में जाएं, उलमा ही निशाने पे, उलमा ही निशाने पर, उलमा ही निशाने पर। क्यों? लेकिन अगर कोई ये समझता है कि हम इन हरबों से जमीयत उलमाए इस्लाम के पाए इस्तिकामत को मुतज़ल्ज़ल कर सकेंगे, याद रखें हमने अपनी तारीख से सर उठा के चलना सीखा है, किसी के सामने झुकना नहीं सीखा है। लेकिन मेरी जान, माल और इज्जत आबरू की जिम्मेदारी रियासत की है, रियासत जिम्मेदार है। मैं रियासत को इस इज्तिमा की वसातत से और आपकी तायीद के साथ वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ, वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ। मुझे जो भी कत्ल करे मैं उसका बदला नहीं लूंगा, मैं स्टेट को अपने कत्ल का जिम्मेदार समझूंगा। इत्ला भेज देते हैं, थ्रेट लेटर, फोन कर लेते हैं, आप फलाने इलाके में न जाएं। यहाँ भी रोक रहे थे ना, मैंने कहा जाऊंगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे मोहतरम दोस्तों, पहले तो हमारे हुक्मरान अपनी खारजा पॉलिसी ठीक करें। पाकिस्तान के दो सरहद है, एक मगरबी सरहद है और एक मशरकी सरहद। मशरकी सरहद पर हिंदुस्तान है, वो सरहद भी बंद। मगरबी सरहद पर 2500 किलोमीटर तक एक अफगानिस्तान है, ये सरहद भी बंद। चीन पाकिस्तान पर एतमाद खो रहा है, वहां से भी कोई बड़ी खैर की अभी तवक्को नहीं है। ईरान के हालात कि अब न वो अच्छे का है न बुरे का, तुम मुल्क महसूर हो गया है। पाकिस्तान तुम्हारी वजह से यरगमाल है इस वक्त, और कहते हो हम पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। तुम खुद भी फंस चुके हो, कौम भी इस वक्त महसूर है, और पाकिस्तान के अवाम आज रुल रहे हैं। एक आबनाए हुर्मुज़ बंद हुआ, हमारे सारे हुक्मरानों के आबनाए हुर्मुज़ बंद हो गए। इंडिया में 1 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत महंगी नहीं हुई। बांग्लादेश जैसे मुल्क में सिर्फ 16% कीमतें बढ़ी हैं, और हम हैं कि यहाँ 61% हमने कीमतें बढ़ा दी हैं। जबकि ईरान का तेल उसी मिकदार से आ रहा है जिस मिकदार से आबनाए हुर्मुज़ बंद होने से पहले आ रहा था। तो सीधी बात है, ईरान के साथ मुआहिदा करो, जायज तरीके से तेल बरामद करो, खत्म बात। IMF नाराज होगा, अमेरिका नाराज होगा, और इनको कमीशनें नहीं मिलेंगी। फिर पूरे स्मगलिंग की निगरानी ये लोग खुद करते हैं। तो जब खैबर पख्तूनख्वा में 45 साल से खून बह रहा है, आज की बात नहीं है, 1979 से लेकर जब मैं अभी तालिब इल्म था और यहाँ जंग शुरू हुई है हमारे सरहद पर, और आज जब मैं 73 साल में दाखिल हो गया हूँ, मुसलसल देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। बलोचिस्तान इस वक्त खून में नहा रहा है, सिंध तो वैसे डाकुओं के हाथ में है। यार समझा करो ना, खुदा का खौफ। सारे इख्तियारात कहते हम मुस्तस्ना हैं, सदर पाकिस्तान मुस्तस्ना है, जिंदगी भर अब उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सके। ऐसा पाक, साफ, शफाफ, ये तो एस्टेब्लिशमेंट बड़ी बेवकूफ और अहमक है, जिसको पता नहीं किस किस जुर्म में 8-10 साल जेल में रखा। कभी इतना बड़ा मुजरिम के जेल में, और कभी इतना पाक और शफाफ शख्सियत कि उसके खिलाफ कोई केस भी नहीं हो सकेगा, और ताहयात। लेकिन ये मेरा मौजू नहीं है। मैं तो ये सोचता हूँ कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को मुस्तस्ना करार नहीं दिया, दावत दी। कोई है कि जिसका मेरे ऊपर हक हो तो वसूल कर। एक सहाबी खड़ा हुआ और कहा, या रसूलुल्लाह मेरा आपके ऊपर एक हक है, मैं वो हक वसूल करना चाहता। आपने फरमाया, क्या हक है? कहा, आपने मुझे एक छड़ी मारी थी, मैं उसका बदला लेना चाहता। आपने फरमाया, आओ। कहा, नहीं, आपने मुझे पीठ पे मारा था, मैंने भी आपको पीठ पे मारना है। आपने पीठ कर दी। कहा, नहीं, पीठ मेरी नंगी थी, मैंने नंगी पीठ पर आपको बदला लेना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीठ नंगी कर दी। वो सहाबी था, बहाना ढूंढ रहा था, लिपट गया और आपकी पीठ मुबारक को चूमता रहा, चूमता रहा, चूमता रहा, यहाँ तक कि मोहर नबूवत को चूमा। लेकिन आपने ये तो नहीं कहा कि मैं पैगम्बर हूँ, मैं मुस्तस्ना हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद अदालत में पेश हुए, काज़ी शुरैह की अदालत में पेश हुए। ये तो नहीं कहा कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ और मुद्दई को हक नहीं है कि मेरे खिलाफ केस दर्ज। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला की अदालत में तो कोई मुस्तस्ना नहीं था, वो खुद भी मुस्तस्ना नहीं थे। ये क्या कानून साजियाँ हो रही। 18 साल से कम उम्र शादी नहीं कर, और अगर शादी कर ली तो इसको ज़िना बिल जबर कहा जाएगा, लेकिन अगर बच्चा पैदा हो गया तो बच्चा हलाली होगा। ये हमारे कानून साजी। आज मुल्क उनसे नहीं चल रहा, बैंक बेचे जा रहे हैं, PIA बेचा जा रहा है, तमाम सरकारी इदारे बेचे जा रहे हैं,
यहाँ तक कि कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बेची जा रही हैं, स्कूल तक बेचे जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन दीनी मदरसा जो प्राइवेट सेक्टर में है उस पर कब्जा हो रहा है। अब ये कोई अक्ल की बात है? इस अक्ल वालों के साथ हमारी जंग है। और मुझे पता है अमेरिका का मदरसे के साथ दुश्मनी कौन कर रहा है, किसके लिए वो मुश्किल बना हुआ है। कानून पास हो चुका है, जिस तरह हमने कहा था उसी तरह पास हुआ है। अब अमल दरामद नहीं हो रहा, सूबों में कानून साजियां नहीं हो रही, और इनका ख्याल यह है कि हम इस तरह मदरसों को गैर मुअस्सर बना देंगे। तुम्हारा बाप भी दीनी मदरसे को खत्म नहीं कर सकेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये जंग हमने लड़नी है, ये तहरीक हमने उठानी है। इस मुल्क में हमें अमन चाहिए, इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए और खुशहाल मईशत चाहिए। जहाँ बदअमनी है हम वहाँ पर भी अवाम के साथ खड़े हैं, अपना खून दे रहे हैं। इस वक्त भी मैंने पार्लियामेंट में भी कहा कि आज जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं खून की झील में खड़े होकर बात कर रहा हूँ। पार्लियामेंट की सियासत में अगर उलमाए किराम जाते भी हैं तो उनको धांधली के जरिए शिकस्त से दोचार करके पार्लिमानी किरदार से महरूम कर दिया जाता है। तुम पार्लिमान के किरदार से हमें महरूम कर सकते हो, लेकिन इस मैदान के किरदार से हमें महरूम नहीं कर सकते। अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। हम इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारा नस्बुल ऐन बड़ा वाज़ेह है। हम पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाही रियासत बनाना चाहते हैं, एक ऐसी रियासत जो माशी लिहाज से ताकतवर हो, एक ऐसी रियासत जो दिफाई लिहाज से ताकतवर हो, एक ऐसी रियासत जहां आम आदमी के हुकूक महफूज हो। और इस जद्दोजहद को इंशाअल्लाह जारी और सारी रखा जाएगा। आप इस जलसे में अज़म करें कि इंशाअल्लाह ये जद्दोजहद हमारी आगे बढ़ती रहेगी। मैं अरब दुनिया से भी कहना चाहता हूं कि अब आपस के झगड़ों का वक्त नहीं है, अब उम्मत के वहदत का वक्त आ गया है। अपनी दिफा एक करो, अपना इक्तिसाद एक करो, अपनी सियासत एक करो, हमाहंगी पैदा करो। कोई तुम्हारा दिफा नहीं करेगा। आए एक दिफाई कुव्वत बनकर हम इस्लामी दुनिया को एक मजबूत ब्लॉक बनाएं और इकट्ठे होकर उम्मत मुस्लिमा के मफादात का दिफा करें।